Welcome to Maharishi Sandipni YouTube channel. Today's topic is Fundamental of Partnership, Chapter 1 of the book Element of Accounts. This is a chapter of Partnership Accounts, the first chapter, Fundamental of Partnership, and the weightage of this chapter is 4 marks as per the board pattern. That means as per the pattern of the GSEB. Now, what is partnership? What is the need of partnership? The need of partnership arises when a sole proprietor, that means a single person who manages the business, requires greater capital investment, more managerial skills, a dedicated team, and the sharing of risk, which is only possible with entering more persons to the organization. So this is the best way to introduce a partner to the partnership. So the capital will come, skills will come up, the team will build, and the risk will be shared. Now we will talk about the definition of the partnership. According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or by any of them acting for all. Now what is the meaning of this? Partnership is the relationship between two or more persons to share the profits. Because there are certain type of the partners who do not agree to share the loss. This is in the ambit of the definition of the partnership as per the act. और ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टनरशिप फर्म को सभी पार्टनर्स एक्टिवली चला रहे हो या उनकी तरफ से कोई एक चला रहा हो. अब आप स्लाइड में देखना, दो आपको इमेजेस दिखाई दे रही. The one image belongs to Indian Partnership Act 1932, which was the prime act. After that, in 2008, a new form of the partnership has been introduced that is called Limited Liability Partnership Act 2008. अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? क्योंकि पार्टनरशिप का एक फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि फर्म के इंसोल्वेंसी के केस में फर्म के पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके बाहर के ड्यूज को चुकाना होता है. बट अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट इज ओनली लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल. सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन योर कोर्स इज ओनली अप टू द थियोरिटिकल. ओके, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है. और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी फर्म बनाना कोई इट्स नॉट अ इजी टास्क. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल के बाद ही आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मिलती है. नेक्स्ट, द पार्टनरशिप फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? टू और मोर पर्सन, यानी कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए तो ही पार्टनरशिप बनेगी. According to Companies Act 2013, the number of the partners maximum is 50 in any business, whether banking or non-banking. Second, agreement. Partnership comes into existence by an agreement, either written or oral. कैसा भी, लिखा हुआ हो या oral हो, but agreement होना चाहिए. बिना agreement के ऑफर को हम लोग लीगल नहीं कर सकते. The written agreement among the partners is called partnership deed. Third, existence of business and profit motive. कोई भी पार्टनरशिप में एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए
और उस बिजनेस का एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कोई इलीगल एक्टिविटी का पार्टनरशिप नहीं हो सकती। आप बोले कि गैम्बलिंग में पार्टनरशिप करिए, दैट इज इलीगल। कोई ना कोई बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, तो कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। खाली एसेट्स का ओनरशिप अगर हम बोले तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप। फोर्थ पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट उन दोनों, उन सबके बीच में प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिवाइड करना है। If some person join hand to run some charitable activity, it will not be called partnership. Further, if a partner is deprived of his right to share the profit of the business, he cannot be called as partner. यानी कि शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग एक फीचर है। अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉफिट। और सेम एज कोई अगर पार्टनरशिप के जो रेशोज हैं, जो एग्रीमेंट है, उसको वो मान्य होते हैं। ओके, तो हम उसको पार्टनर नहीं बोलते अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानता। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी था, आपने देखा था, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसको वो सब चला रहे हो या उनकी तरफ से कोई एक चला रहा हो। बट सिक्स्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहां पर जब हमने 11th में स्टडी स्टार्ट करी थी अकाउंट्स की, तो सबसे पहला हम प्रिंसिपल बताते हैं कि फर्म एंड द ओनर बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। सो यहां पर फर्म एक है प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल को मार्केट के अंदर फॉलो कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं कौन, उसके एजेंट यानी कि पार्टनर। दैट्स वाई पॉइंट में देखो लिखा है, each partner is an agent and as well as the partner of the firm. An agent because he can bind the other partner by his acts, and principal because he himself can be bound by the act of other partner. अगर कोई पार्टनर कमिटमेंट करता है मार्केट में, तो वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनर्स की भी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? The partnership deed is a written agreement among the partner which contains the term of the agreement. It is also called articles of partnership. A partnership deed should contain the following points. Okay, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, यानी कि जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, कौन से पार्टनर है, किसने कितनी कैपिटल कंट्रीड्यूस करा। अब सारे पॉइंट्स वही आने वाले, देखिए आप। सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर, बिजनेस का नेचर क्या है, प्लेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है, और पार्टनर्स अपने कमीशन और सैलरी यानी कि प्रॉफिट के अलावा कोई पार्टनर सैलरी लेता है या कमीशन लेता है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में हमें मिलती है। The next thing is the very important thing, which we can say, this is benefits of the partnership deed. The benefits of the partnership deed, it regulates the rights, duties and the liabilities of each partner. यानी कि पार्टनरशिप डीड, अगर कोई कंपल्जन नहीं है पार्टनरशिप डीड करना, बट पार्टनरशिप डीड रहती है तो अच्छा होता है। सब पार्टनर्स के बीच में एक लीगल अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक ऑन पेपर एक एग्रीमेंट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो। थर्ड, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडी रेफर्ड टू, यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, conditions applicable under absence of partnership deed. First, profit sharing ratio. जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, at that point of time
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैसी भी कैपिटल उन्होंने कितनी अमाउंट डाली हो। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए आप, सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करा है तो ऑन दैट लोन 6% इंटरेस्ट पर एनम विल बी प्रोवाइडेड। तो कोई भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आ सकता है और वो हम लोग जब धीरे धीरे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देख सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आगे। हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमंग पार्टनर। देखिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फर्म के अंदर किसी भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करा जाता है। तो यहां मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म is to divided among the partner in P&L sharing ratio. P&L means profit and loss. मैं यहाँ पे profit and loss short form P&L ही यूज करूंगा। Agreed upon the terms and condition. Suppose कोई फर्म की में डीड नहीं है तो वहां पर इक्वल पार्टनर होता है, और कुछ नहीं बोल रखा तो हम वहां पर इक्वल प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। ओके, यानी कि 2 पार्टनर है तो 1:1, हाफ हाफ। 3 पार्टनर है तो 1:1, यानी कि 3 हिस्से हो जाएंगे उसी प्रॉफिट के। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इफ अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटिंग बाय राम, श्याम एंड सुधीर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 66,000 आफ्टर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस को काट के 66,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए बचता है। हेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन, सो हमने क्या करा यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट ले लिया है, 1:1 देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पर एक मैं पॉइंटर का यूज करता हूँ तो पॉइंटर के यूज से आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पे ये मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, दिस इज द पॉइंटर, यस। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो 66,000 के ये 1/3 यानी कि 22,000, सेम एज दोनों पार्टनर्स के श्याम और सुधीर का भी वही हिस्सा होगा, 22,000 एंड 22,000। सेकेंड एग्जाम्पल, if in the above example P&L sharing ratio is 3:2:1, यानी कि 3:2:1, तो यहां पर जो राम का शेयर रहेगा that is 66,000 into 3/6, तो कितना हो गया 33,000। ये भी 6 कहां से आया, 6 means 3 + 2 + 1, यानी कि जिसका नाम पहले हमने बात किसकी करी थी, देखिए यहाँ पे पार्टनर्स के नाम देखो, राम, श्याम, सुधीर। तो ये 3 राम के लिए, ये श्याम के लिए और ये सुधीर के लिए, तो राम, श्याम, सुधीर। ओके, श्याम का 66,000 into 2/6, सुधीर का 66,000 into 1/6, तो यहां पर आया 33,000, 22,000 और 11,000। ओके, तो देख लीजिए यहाँ मैंने कैलकुलेशन भी दिखा रखी है, 66,000 into 3/6 that is 22,000, and what is the reason why the denominator is 6, because this 3 + 2 + 1। तो आज का सेशन इस वाली क्लास का हमारा इतना ही रहेगा। आज हम लोगों ने जो पॉइंट्स कवर करे हैं दैट इज आपके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप के फीचर्स, और सबसे लास्ट चीज हमने पढ़ी अभी करंटली